First of all, I would like to thank Ms. Sania Parveen, जिन्होंने मेरे बहुत ही अच्छा और brief introduction दिया और इस event को gracefully host भी किया. So sincerely thankful our wonderful host, Ms. Sania. Big round of applause for her. Thank you very much. Now moving forward, I would like to call our beautiful panelists to the stage because stage, me and audience, all are waiting for eagerly them. So yes, without any wasting of time, I would like to invite honorable panelists to the stage one by one. I'm going to start with my first panelist brief introduction. She has played pivotal role in shaping the future of midwives and advancing maternal health care. Her dedication and unwavering commitment have made her a true role model for her upcoming generation of midwives. It is an honor to have her with us today. Please join me in welcoming Ms. Mahmooda Khwaja, Principal of Kawasji School of Nursing, Midwifery, Lady Different Hospital. Thank you and very welcome, Ma'am Mahmooda. And now it is my privilege to invite our second panelist, Ms. Fakhrunisa, Deputy Director of Nursing, Directorate of Nursing, Sindh. With her vast experience in nursing administration, policy making, and healthcare leadership, she has played a crucial role in strengthening nursing education and practice across Sindh. Thank you for coming, Ma'am Fakhrunisa. Now we are deeply honored to have Brigadier Retired Dr. Mubashshir Samina as one of our esteemed panelists for today's discussion. Dr. Mubashshir is a distinguished consultant, obstetrician and gynecologist with over 30 years of services across Pakistan, a graduate of Allama Iqbal Medical College, Lahore. She has proudly served in the Pakistan Army, Navy and Air Force, earning the Chief of Army Staff commendation for her outstanding contribution. She is passionate medical educationist, supervisor, and examiner at CPSP and author of numerous research publications. As principal investigator of the Women 2 trial and head of Department of Obstetrics and Gynecology at Indus Hospital, Karachi. She's continued to lead initiatives that advance maternal health and empower women in medicine. We are privileged to have her invaluable presence with us. Thank you, ma'am, for coming. Madam Mahmooda, Madam Fakhrunisa, and Dr. Mubashshir Samina, once again are very welcome, and we sincerely thank you for gracing this occasion with your presence. Thank you. Okay, तो इससे पहले कि हम इस सेशन की जानिब बढ़ें, I would like to take a moment to inform you about the theme of today's panel discussion. And the theme is reducing maternal and mortality in Pakistan. Where do midwives stand? मैं अपनी ऑडियंस से उम्मीद करती हूँ कि आप इस सेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि अब तक आप बहुत अच्छे से ज्वाइन है हमारे साथ, तो आगे भी हमारे साथ इसी तरह रहिएगा. मैं वन बाय वन करके अपने पैनल से और पैनल्स के जो मेंबर हैं उनसे पूछना चाहूँगी कुछ रिलेटेड टू मिडवाइफरी क्वेश्चंस जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हमारी नॉलेज में भी इजाफा करते हैं और हमारी अपकमिंग जितनी भी हमारा जर्नी रहने वाली है उसमें हमें यूज टू रहेंगे. सो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन मैडम महमूदा से होगा. मैम, आपसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है प्लीज़. एज एन एकेडमिक लीडर आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि हमारी मिडवाइफ ग्रेजुएट जो हैं मैटरनल एंड न्यूनेटल इमरजेंसीज को कितनी हद तक हैंडल कर सकती हैं या वो कितनी कॉम्पिटेंट हैं इस चीज़ को लेकर? थैंक यू मैम. सबसे पहले तो ये कि I would like to congratulate Kuhi Goat and Dr. Shesha and his team for arranging such a wonderful conference for midwife. So this is great opportunity for midwife to get together and have increase their knowledge regarding the midwifery, and plus to have the exposure what is going on around the world for the midwives, and especially Dr. Shesha और Kuhi Goat जो काम कर रहे हैं, तो we are very really appreciate Dr. Shesha.
आपका थैंक यू। आपका सवाल है कि जो मिडवाइफरी ग्रेजुएट्स हैं वो इमरजेंसीज को फेस करने के लिए कितनी हद तक तैयार होती हैं। तो हम पुरानी बात नहीं करते, मगर आज की जो रिसेंट अगर हम करंट प्रैक्टिसेस देखें तो माशाल्लाह हमारी जो ग्रेजुएट्स हैं, नॉट फ्रॉम ऑल द स्कूल्स, लेकिन कुछ सेलेक्टेड स्कूल से पाकिस्तान की बहुत सी अच्छी स्कूलें हैं जहाँ से वो ग्रेजुएट होती हैं। मिडवाइफरी स्कूल्स भी हैं, नर्सिंग स्कूल्स भी हैं, तो माशाल्लाह उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है और उनको बाकायदा इक्विप किया जाता है कि किस तरह से वो जब फील्ड में जाती हैं, काम करती हैं, तो एमरजेंसीज को कैसे फेस करेंगी और कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेंगी। तो दे आर वेल इक्विप्ड, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी ग्रेजुएट जो हैं वो फुल्ली इक्विप्ड हों to face the emergency and to deal with the emergency, it is important that during their study हमें जो है उनकी सिर्फ एजुकेशन नहीं बल्कि हमें उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस और कॉम्पिटेंसीज को भी इन्हांस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मिडवाइफरी इज़ एन आर्ट एंड साइंस। तो सिर्फ एजुकेशन देना या थियोरिटिकल पार्ट पढ़ा देना, जो कि बहुत सी स्कूलें भी कर रही हैं और आप सबको पता है, इज़ नॉट इनफ फॉर द मिडवाइफ to be ready for the any emergency. So competency based learning बहुत ज़रूरी है. We have to encourage and enhance the competency in our midwife. और जो सबसे important चीज़ है कि जो हमारा assessment system है उसको भी, जो अभी बड़ी मुश्किलों से हमने competency based किया है, यानी हम OSCE करके करते हैं उनको assessment during the examination, इनके final exam में। और ये OSCE वो टेक्निक है जो मिडवाइफ को ड्यूरिंग एजुकेशन एज ए स्टूडेंट दे गेट वेरी अच्छी स्किल्स इन्हांसमेंट इनकी हो जाती है एंड दे आर वेरी कॉम्पिटेंट इन देयर ऑल देयर कॉम्पिटेंसीज। तो मुझे लेजिस्लेशन से भी रिक्वेस्ट है, हमारे बोर्ड से भी रिक्वेस्ट है कि OSCE को शुरू करना was not an easy job, और इसके लिए बड़ी मेहनत की गई थी और बड़ी मुश्किलों से जो है वो मिडवाइफरी के एग्ज़ाम्स जो है वो उसमें OSCE आई और OSCE से एग्ज़ाम्स हो रहे थे पिछले 5-6 साल, बहुत अच्छी तरह हो रहे थे। लेकिन बहुत अफसोस हो रहा है कि पिछले 2 साल से हम OSCE नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारी बच्चियों को या हमारी स्टूडेंट्स को, जो हमारी ग्रेजुएट्स को जो है बहुत ही दूर ले जाएंगी उनकी कॉम्पिटेंसी से। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि हमारे जो कंट्रोलर हैं या जो हमारे DGN साहबान हैं और जो भी हमारे लेजिस्लेशन है, उनको चाहिए कि OSCE को कंटिन्यू रखें ताकि हमारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड मिडवाइफ निकले। और अगर मिडवाइफ कॉम्पिटेंट हैं तो कोई मुज़ायका नहीं कि वो हर किस्म की इमरजेंसी को डील कर सकती हैं, एंड दे आर डीलिंग इन द पाकिस्तान, दे आर। अगर आप PDA देख लें लास्ट 2 साल का, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR रिड्यूस हुआ। क्यों रिड्यूस हुआ? आप मिडवाइफ की वजह से, ठीक है। सो आई थिंक दे आर रेडी टू डील द इमरजेंसी, मगर स्टिल दे नीड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, दे नीड टू इन्हांस देयर लर्निंग, बिकॉज जब आप प्रैक्टिस में आ जाती हैं तो एज ए एजुकेशन, एज ए स्टूडेंट आपकी लाइफ अलग होती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आती हैं तो वहाँ पे आपकी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाती है। सो यू नीड अ कंटिन्यूइंग एजुकेशन टू इन्हांस योर नॉलेज एंड कीप योर सेल्फ अप टू डेटेड विद ऑल द स्किल्स एंड ऑल द डेवलपमेंट whichever is coming in the midwifery. So we can deal every emergency if you are competent enough. थैंक यू मैडम। मैं इसी मुझे और क्वेश्चंस भी करने हैं, मैं इसी तरफ आ रही थी। आपने कहा कि हमें एजुकेशन को अपनी कंटिन्यू रखना चाहिए, हमारी मिडवाइफ्स हों या कोई भी प्रोफेशंस हो। बिल्कुल। इसी हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे करिकुलम और हमारे कोर्सेज या फिर स्किल्स में ख़ास तौर पे मिडवाइफ्स के किस किस्म की तब्दीलियाँ लाने की और ज़रूरत है जो हम इन चीज़ों को या फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को ओवरकम कर सकें?
थैंक यू। ये बहुत अच्छा सवाल है, और जो मैंने बात की कि कंटिन्यू एजुकेशन होनी चाहिए, या हमारी मिडवाइफ जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग ले रही हैं, तो सबसे पहले तो हमारा कैरिकुलम जो लास्ट 2012 और 13 में रिवाइज हुआ था, उसके बाद बहुत सी स्किल्स, बहुत सी कॉम्पिटेंसी हैं जो कि आगे आई हैं, और जिसमें बहुत सी मिडवाइफरी टीचर्स और प्रिंसिपल और मिडवाइफरी की जो स्टाफ हैं वो ट्रेंड हो चुकी हैं, मगर हमारे कोर्स में वो अभी भी जो है वो ज्वाइन उनको जो है वो डाला नहीं गया है। स्टिल वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम। जैसे पोस्ट एबॉर्शन केयर है, उसका बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन जो है वो लास्ट ईयर डाला गया। अभी आजकल हम LCG की बात कर रहे हैं, लेबर केयर गाइड की बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सी मिडवाइफ ट्रेन हुई हैं, और बहुत से जैसे हम लोग मास्टर ट्रेनर बन के जब आए, उसके बाद वी हैव रिप्लिकेटेड दिस ट्रेनिंग अक्रॉस कराची, अक्रॉस पाकिस्तान हमने रिप्लिकेट की। तो ट्रेनिंग्स तो हो रही है, लेकिन जब तक वो कैरिकुलम का पार्ट नहीं होगी तो वो स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाएंगी। तो पहली पॉइंट तो ये है कि हमें जो है अपनी मिडवाइफरी कैरिकुलम को रिवीजन की ज़रूरत है, उसको अपडेट करने की बहुत ज़रूरत है। और उसके बाद ये है कि जो भी टीचर्स, जो भी प्रिंसिपल, जो भी मिडवाइफ की नर्सेज या मिडवाइफ जो हैं वो इन एडवांस टेक्नोलॉजी में ट्रेन होके आती हैं, तो अब उनकी जिम्मेदारी है कि दे शुड रिप्लिकेट दिस ट्रेनिंग्स इन देयर इंस्टीट्यूशन, नॉट ओनली देयर ओन इंस्टीट्यूशन बल्कि अक्रॉस पाकिस्तान, अक्रॉस कराची एटलीस्ट वो इनको रिप्लिकेट करें। क्योंकि हम सुनते रहते हैं बहुत सारी ट्रेनिंगें हो रही हैं, गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से हो रही हैं, DGN के प्लेटफॉर्म से बहुत सी ट्रेनिंगें हो रही हैं फॉर द एडवांस टेक्नोलॉजी पे, लेकिन उसको भी रिप्लिकेशन नहीं हो रही है। वो जो ट्रेनिंग लेके आया वो स्टाफ या वो डॉक्टर तो ट्रेन हो गई है, वो मिडवाइफ तो ट्रेन हो गई, मगर आगे रिप्लिकेट नहीं हो रही है। तो वी नीड टू स्ट्रेंथन दिस सिस्टम कि हम उस ट्रेनिंग को रिप्लिकेट करें। और दूसरी जो चीज़ें हैं कि हम अपनी जो भी टीचर्स पढ़ के आती हैं वो अपनी IT की नॉलेज को भी इन्हांस करें, अपने कंप्यूटर को देखें, क्योंकि आजकल आपको पता है कि मीडिया पे हर चीज़ मौजूद है। तो अगर आप लोगों को अपनी नॉलेज बढ़ती है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे एक चीज़ जो सबके साथ शेयर करूँगी कि मैं माशाल्लाह 78 ईयर्स की हो गई हूँ, मगर स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग माई इन्हांसिंग माई नॉलेज ऑन द सोशल मीडिया। ठीक है, क्यों करती हूँ? क्योंकि बहुत सी चेंजेस आ रही हैं, मतलब ओवर द नाइट आप सुबह उठेंगी थ्योरी चेंज हो चुकी है आपकी, बहुत सारी चीज़ें इन्हांस हो गई। तो बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो आपको कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, जो कि आपकी सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाती हैं। मैं अपनी स्टूडेंट्स को भी हमेशा शेयर करती हूँ, और हर प्लेटफॉर्म पे मैं ये कोशिश करती हूँ कि हर मिडवाइफ जो है अपने आप को अप टू डेट रखे। अगर आपको ट्रेनिंग के मौके नहीं मिल रहे हैं, आप फिज़िकली नहीं जा सकती, तो आपके सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। स्पेशली जो पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल PNMC ने जो एक बहुत अच्छा पोर्टल अपडेट किया हुआ है, कंटिन्यू वर्ल्ड अलायंस फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन, वो बहुत ही ज़बरदस्त सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोग्राम है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द मिडवाइफ टू अटेंड दोज कोर्सेज एंड इन्हांस योर नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसीज। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा मैडम महमूदा, मेरा लास्ट एक क्वेश्चन और है आपसे कि हमें किस किस्म के इदारों के साथ अपने स्टूडेंट्स और अपने जो कॉलेजेस और स्कूल्स हैं उनको एम्बेड करना चाहिए ताकि उनको एक अच्छा एक्सपोजर मिल सके? तो ऐसे कौन से इदारे हैं जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स जा सकते हैं, ग्रेजुएट्स जा सकते हैं फॉर एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर इसके लिए? अच्छा, ये तो मैं कहूँगी कि इस चीज़ की ज़रूरत तो हमें ट्रेनिंग के दौरान भी पड़ती है कि जब हमारी ट्रेनिंग, जैसे मैंने बोला कि मिडवाइफरी ट्रेनिंग इज़ नॉट जस्ट द एजुकेशन या थियोरिटिकल क्लास, बट इट्स अ प्रैक्टिकल, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होनी चाहिए, सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए और कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए इनका क्लिनिकल्स के पूरे आपको पता है कि पूरा इनका कैरिकुलम है कि इनका 25% थ्योरी होता है आपका और 75% आपका प्रैक्टिकल है। आपके जो कैरिकुलम बताता है वो 75% आपसे डिमांड करता है कि आप प्रैक्टिकल एजुकेशन लें, सिर्फ 25% आपकी थ्योरेटिकल जो है वो एजुकेशन है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है, नर्सिंग इंस्टीट्यूशन है या मिडवाइफरी इंस्टीट्यूशन है, जो कॉलेजेस हैं, दे शुड हैव अ गुड लाइजन विद द क्लिनिकल सेटअप। जो भी हॉस्पिटल आपके साथ बडी है, जिसके साथ आपका MOU साइन है कि हमारे क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए स्टूडेंट्स वहाँ आएंगे, तो आई थिंक कि ये बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर स्कूल जो है वो अपनी हॉस्पिटल के साथ या जो भी क्लिनिकल एरिया, जो भी क्लिनिकल साइट आपने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जो आप सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से देखते हुए अपनी स्टूडेंट्स को वहाँ प्रैक्टिकल के लिए भेजती हैं,
तो वहाँ के साथ आपका बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपकी पॉलिसीज़ बनी होनी चाहिए, आपका MOU साइन होना चाहिए, क्लिनिकल सेटअप होना चाहिए, आपका रोटेशन लगना चाहिए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हम लोग करते हैं कि हम लोग मंथली रोस्टर्स बनाते हैं कि लड़कियों को किस किस वार्ड में किस किस क्लिनिकल सेटअप पे जाके अपनी नॉलेज और स्किल्स को इन्हांस करना है। और पूरा साल हम उसको ये देखते हैं कि अगर एक लड़की ने 2 डिपार्टमेंट कर ली और तीसरा डिपार्टमेंट नहीं किया तो वी मेक आवर बेस्ट प्रैक्टिस। हम जाके वार्ड्स की स्टाफों से, इंचार्जेस से मिलते हैं, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लड़कियों को इस फील्ड में भी प्रैक्टिस करवाई जाए। तो दोनों जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है या जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है वो और स्कूल के दरमियान जो है बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और प्लेसमेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स का कि कहाँ कहाँ जाएंगे। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ स्टूडेंट्स को क्लिनिकल साइट पे भेज देना इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम या कॉलेजेस या स्कूल की जिम्मेदारी नहीं कि आपने लड़कियों को भेज दिया क्लिनिकल भाई चले जाओ और कोई सुपरविजन नहीं है, कोई उन्हीं की मॉनिटरिंग नहीं है, तो इट्स नॉट वर्थ। अगर आप बच्चियों को अपनी स्टूडेंट्स को भेजते हैं तो देयर शुड बी कंटिन्यू मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट्स। हमारी मिडवाइफरी के लिए बहुत अच्छे लॉग बुक बनाए गए हैं जो बहुत ही मेहनत से बनाए गए थे। और मैं इस मौके पर मरहुमा मिसेस इम्तियाज़ ताज कमाल, द फर्स्ट मिडवाइफ ऑफ पाकिस्तान को नहीं भूलूंगी, जिनकी इंतहा कोशिशों के बाइस जो है ये लॉग बुक जो है प्रैक्टिस में आया कि मिडवाइफ जब क्लिनिकल साइट पे जाती हैं दे शुड फॉलो दिस लॉग बुक। वो अपनी स्किल्स को भी उसमें रिकॉर्ड करती हैं, प्लस वो ऑन गोइंग अपनी जो स्टाफ है जिसके ज़ेरे निगरानी वो काम करती हैं, टेक्निकल एजुकेशन हासिल करती हैं या प्रैक्टिस करती हैं, उनसे वो अपना फीडबैक लेती हैं और फिर हमारी क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर जाके उन स्टाफों से मिलती हैं और स्टूडेंट्स का फीडबैक लेती हैं कि हाउ वाज दिस स्टूडेंट ड्यूरिंग हर होल क्लिनिकल एक्सपोजर फॉर 1 मंथ और 2 मंथ, जो भी हम टाइम ड्यूरेशन फिक्स करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और बहुत सी हॉस्पिटल्स हैं जो कि इंटर्नशिप भी करवाती हैं, बहुत सी हॉस्पिटल हैं जो फ्री इंटर्नशिप की आजकल ऑफर भी कर रही हैं। तो आई थिंक जो भी हमारी ग्रेजुएट हैं दे शुड start doing their internship in the different hospital, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आप जो एजुकेशन लेते हो दैट्स नो डाउट इट्स वेरी गुड, आपकी स्कूलें आपको बहुत मेहनत करती हैं, मगर जब तक आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं होंगी यू वॉन्ट बी अ कॉम्पिटेंट मिडवाइफ। और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए यू मस्ट वर्क एज एन इंटर्नी फॉर 1 year इन द एनी हॉस्पिटल विच इज़ नियर बाय टू योर हॉस्पिटल क्लिनिकल एरिया और योर हॉस्पिटल स्कूल के एरिया में है या जिनके साथ आपकी स्कूल का लाइजोन है। यू शुड वर्क देयर फॉर 1 year टू गेट योर सेल्फ वेरी कॉम्पिटेंट इन ऑल द मिडवाइफरीज की। तो फिर आप वही होंगी कि हमारी ग्रेजुएट जितनी भी निकलेंगी माशाल्लाह इतनी कॉम्पिटेंट होंगी कि वो डॉक्टरों को पीछे छोड़ देंगी नॉर्मल डिलीवरीज और इमरजेंसी को डील करने। थैंक यू सो मच मैडम महमूदा। मैडम की एक बात सबसे अच्छी है कि बहुत सारी बातें एक ही 2 सवालों के अंदर वो सब चीज़ें क्लियर कर देती हैं, तो मेरे ख्याल से आप तक पूरी जानकारी पहुंच गई होगी, ऐसा ही है या आप लोग सो रहे हैं पीछे? थैंक यू वंस अगेन। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड पैनलिस्ट मैडम फ़ख्रुन्निसा से और इनसे हम पूछेंगे कुछ हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हवाले से कि मिडवाइफ के लिए वो एक्चुअल क्या कर रहे हैं और उनके क्या प्लानिंग्स हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। अच्छा, डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग की तरफ से जो इस वक्त काम हो रहा है वो सबसे ज़्यादा कैरिकुलम को रिवाइज़ करने के ऊपर PNMC के साथ मिलके रिवाइज़ करने के ऊपर काम हो रहा है। दूसरा ये यहाँ स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो स्टूडेंट्स के लिए नहीं, साथ साथ फैकल्टी की भी CPDs होनी चाहिए, तो फैकल्टी की भी ट्रेनिंग पैरेलली हमारी चल रही हैं। सेकेंड, आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि जो मिडवाइफ्स फर्दर एजुकेशन हासिल करना चाह रही हैं उनके लिए भी ब्रिजिंग प्रोग्राम जो है वो पाइपलाइन में मौजूद है हमारा। तो फ्यूचर में आप लोगों के लिए भी बैचलर के लिए काम हो रहा है। आप अगर इस फील्ड को परसू करना चाह रही हैं अपनी ट्रेनिंग को तो कंटिन्यूएशन में जाएगा। दूसरा ये कि हमारे पास इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो बैचलर ऑफ नर्सिंग इन मिडवाइफरी
सिंध के अंदर भी इंशाल्लाह सून जो इनोग्रेट करेंगे। सबसे पहले हमारा रुत के सिविल हॉस्पिटल कराची, देन कतर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जहाँ पे बैचलर के लिए भी प्लान आउट चीज़ें हमारी हैं। सेकंड ये कि जब तक हम अपनी टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं देंगे फर्दर, जैसे जैसे मैडम महमूदा ने भी कहा कि आज हैं तो कल और चीज़ें इन, तो जब तक आप जैसे LCG पहले पार्टोग्राफ था, LCG की जो ट्रेनिंग है, महमूदा भी मास्टर ट्रेनर हैं, बहुत सारे और मास्टर ट्रेनर मौजूद हैं, हमने टिकल डाउन किया। PCPNC की ट्रेनिंग है वो भी टिकल डाउन की तरफ गई है। कैरिकुलम बैचलर का रिवाइज हो रहा है, वो भी उसके साथ भी पहली ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरा ये कि जैसे पोस्ट ऑपरेशन केयर है, उसके ऊपर भी मास्टर ने हमारी फैकल्टी ट्रेंड हो गई है, वो ट्रेंड हुई है तो अपने स्टूडेंट्स को जाके भी ट्रेन कर रही हैं। तो ये इन हमारे डायरेक्टरेट की तरफ से सिंध गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिल के UNFPA है, मैप है और WHO है, इनके साथ मिल के हम ये चीज़ें प्लान आउट और हमारे टिकल डाउन हो रही हैं। थैंक यू मैडम फखरुन्निसा। मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट चैलेंज डू यू फेस टू सी रिटेनिंग स्किल्ड मिडवाइफ्स स्पेशली इन rural underserved areas and how can these be addressed? अभी जैसे सबाहत ने 3 डिलेस की बात की, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है हमारी मिडवाइफ्स को 24/7 की सर्विसेज अगर उनसे लेनी है तो उनके इंसेंटिव का सबसे ज़्यादा इशू है, उनको फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके लिए ऐसा सिस्टम नहीं है जो उनको सिक्योरिटी दे सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेन फेस करती है वो फैसिलिटीज़ के साथ साथ सिक्योरिटी भी है, इंसेंटिव्स नहीं है, हमारे पास करियर पाथवे नहीं है, उनके लिए कोई क्या जॉब्स के लिए कोई अभी तक पॉलिसी में नहीं है कि उनकी कोई जॉब्स क्रिएट की जाए। तो ये भी हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर भी काम कर रही है। जैसे PPHI वालों ने मिडवाइफ्स के लिए, मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि CMW हो, LHV हो, नर्स मिडवाइफ हो, ऑल आर द मिडवाइफ्स। सबसे पहले तो मिडवाइफ्स हैं आप लोग, कोई CMW नहीं है मेरी नज़र में, कोई LHV नहीं है, कोई नहीं, आप मिडवाइफ है माँ और बच्चे की। तो आपके लिए जॉब सिक्योरिटी जब तक नहीं होगी, ये सबसे बड़ा बैरियर है हमारे कहीं पे भी रिटेन करने के लिए, मिडवाइफ्स के लिए। तो जब तक हम उनके लिए इंसेंटिव्स या जॉब्स सिक्योर नहीं करेंगे, करियर पाथवे नहीं बनाएंगे, तब तक हम कुछ चीज़ें जो हैं टाइम लगेगा, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है, लेकिन ये इंशाल्लाह 1-2 साल में ये चीज़ें जो मैम आपके कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों पर काम कर रही है, बिल्कुल फोकस्ड है, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट होगा, बिल्कुल होगा लेकिन इंशाल्लाह। उससे पहले हमारी इतनी माएँ मर जाएंगी वहाँ पर, नहीं पहुँच ही नहीं पाती। उसके लिए देखिए मौजूद हैं अभी हमारे CMWs हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 28 CMW इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, जो कि तकरीबन 900 मिडवाइफ्स पर एनम जो ट्रेंड हो रही हैं, वो जाके लोग पहले सर्विसेज दे रही हैं हमारी। प्रॉब्लम मैम यही आती है कि जब वो मिडवाइफ्स यहाँ से ट्रेन होकर जाती हैं तो वहाँ पर उनको वही सब बातें, जो फैसिलिटेशंस, उनको सिक्योरिटीज़ नहीं मिल रही हैं, उसके लिए हमें कुछ करने की हमें वहाँ पे कम्युनिटी को एंगेज करना पड़ेगा, वहाँ के लोकल लीडर्स को एंगेज करना पड़ेगा। जब तक हम अपने लोकल लीडर्स को एंगेज नहीं करेंगे, उन तक ये चीज़ें नहीं पहुँचाएं, तो तब तक हम कोई भी किसी भी काम, फॉर एग्जांपल अगर हम फैमिली प्लानिंग का लें तो फैमिली प्लानिंग हमारा कितना फ्लॉज आया था, लेकिन जब हमने जाके वहाँ के रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व किया तो उन्होंने नहीं है, वो एग्जाम्पल है। तो आज जैसे आपने वक्फा क्लिनिक कर दी, जी ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों में चेंज आने में टाइम लगता है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है और थोड़ा टाइम है, और इस पे गवर्नमेंट बहुत कमिटेड है। मेरे ख्याल में इस वक्त जितना मिडवाइफरी पे काम हो रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे सिंध के अंदर, जितना मैं कहती हूँ कि आउटस्टैंडिंग काम हो रहा है, सिंध सेकंड प्रोविंस होगा जो कि मिडवाइफरी के ऊपर बैचलर की तरफ जाएगा, जो BSM 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। तो ये बिग अचीवमेंट है हमारे लिए। जैसे हमारे BSM प्रोग्राम, हमारे पास 44 ग्रेजुएट्स मौजूद हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप
रही हैं। गवर्नमेंट हो रही है कर और रहा है। इनिशिएटिव लिया हुआ ठीक है। है। एडीपी ने इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, तो कुई गोट इसका तो मेन पार्ट है। और आज मिडफ्री की जो पहचान है वो मैडम मिसिस इम्तियाज़ कमाल आपा के नाम से है। उन्होंने 2 कैडर सेपरेट किए थे, नर्सिंग को सेपरेट किया था, मिडफ्री को सेपरेट किया था। तो मिसिस इम्तियाज़ कमाल आपा के लिए एक बिग क्लॉस होना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू मैडम फखरुन्निसा। और उनके लिए तो और इनके लिए भी आप प्लीज़ ज़ोरदार तालियों का पेश करें। इन्होंने बहुत सारी आपको अचीवमेंट्स बताई हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि सिंध में BSM अनकरीब स्टार्ट होने वाला है, और कुछ शायद इंस्टीट्यूट में स्टार्ट भी हो गया है, कुछ हो चुके हैं PNC से वेरीफाई। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म रहेगा कि आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं आफ्टर मिडफ्री एंड FSC, जो भी उसके प्रॉपर एक चैनल है उसके थ्रू। सो थैंक यू मिस फखरुन्निसा वंस अगेन। एंड अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पैनलिस्ट पर, जिनका नाम है डॉक्टर मुबशरा साइमा। शी इज़ अ ब्रिगेडियर रिटायर्ड। सो हम इनसे सवाल करेंगे फ्रॉम अ क्लिनिकल, मैम आपसे क्वेश्चन है मेरा, फ्रॉम अ क्लिनिकल परस्पेक्टिव, हाउ डू यू सी द रोल ऑफ मिडवाइव्स इवॉल्विंग अलोंगसाइड डॉक्टर्स इन मैनेजिंग मैटरनल एंड न्यूनेटल केयर? आई होप आप लोग मुझे सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत सारा शुक्रिया अदा करूंगी, आपने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, मुझे यहाँ बुलाया। आई एम फीलिंग वेरी वेरी ऑनर्ड। और उसके साथ साथ मैं एक खूबसूरत शाम आपके साथ गुजारने पे बहुत खुश हूँ। मुझे पहली दफ़ा ये ऑनर मिला था जब मुझे पब्लिक हेल्थ स्कूल में 2 साल पढ़ाने का मौका मिला मिडवाइफ्स को। दैट वाज ए वेरी गोल्डन पीरियड ऑफ माय टाइम। फिर कुछ अर्सा मुझे कोहीगोट में मिला। तो मैं समझती हूँ कि मिडवाइफ्स जो हैं ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसका, हेल्थ केयर का, जिसके बग़ैर कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो तरक्की नहीं कर सकता, पनप नहीं सकता। उसकी एक बड़ी वजह है क्योंकि हेल्थ केयर में अगर आप एक बेसिक रोल जो है वो आप मिडवाइफ्स जो हैं वो प्ले करती हैं। अभी मैडम ने बात की थी कि हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी देख सकते हैं। मेरा आपको ये कहना है कि आप कॉम्प्लिकेशन से बचाते हैं। मिडवाइफ्स जो हैं वो अपने पेशेंट्स को केयर दे के उनके घर तक पहुंच के रूट लेवल पे कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले पेशेंट्स को संभाल लेती हैं कि कॉम्प्लिकेशन ना हो, और जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होने का डर होता है उसे वो आगे फॉरवर्ड करती हैं विद द रेफरेंस। फिर आता है नर्स का रोल। नर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्स एक स्टेप उनसे आगे हो जाती है क्योंकि वो प्रिस्क्राइब भी कर सकती है चीज़ें। और थर्ड जो रोल है फिर आता है डॉक्टर का। अकेला डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। अकेले डॉक्टर को आप अस्पताल में खड़ा कर दें, वो ऐसे ही होगा जैसे F-16 के पायलट को आप सहरा में खड़ा कर दें, उससे कहें उड़ो, कैसे उड़ेगा विदाउट जहाज़। इसी तरह से हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं, हमारा हाउस कीपिंग वाला भी इतना इम्पॉर्टेंट है जैसे कि मैं या आप, लेकिन जो आपका काम है, जो आप पेशेंट के साथ 24 घंटे होते हैं, और जो मिडवाइफ्स हैं उनका रोल इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो अप्रोच है वो पेशेंट के घर तक है, कम्युनिटी तक है। आप उन चीज़ों को पे काम कर सकते हैं जिस चीज़ पे मैं काम नहीं कर सकती। तो जो हेल्थ केयर सिस्टम में मिडवाइफ का डॉक्टर के साथ एक चोली दामन का साथ है, नहीं चल सकते हम आपके बगैर। तो आपको अपनी इम्पोर्टेंस समझनी है, आपको ये समझना है कि हाउ इम्पोर्टेंट यू पीपल आर। और कभी भी ऐसा नहीं होता जब तक आप अपनी अहमियत को खुद नहीं समझोगे बेटा, कोई आपको अहमियत नहीं देगा। और अपनी अहमियत कैसे बनानी है, जैसे मैडम ने कहा, अपने आप को अपग्रेड करो। करिकुलम इन्होंने बना दिया, आपने उसको पढ़ना है, आगे निकलना है। एवरी डे, हर दिन तुम्हारे लिए ज़िंदगी का एक ऐसा दिन होना चाहिए कि आपने कुछ नया सीखा हो और कुछ नया सिखाया हो। नॉर्मल डिलीवरी मैंने अपने मिडवाइफ फ्रेंड से सीखी, और अभी भी ऐसा है कि नॉर्मल डिलीवरी में मेरा दिल पत्ता हो रहा होता है और वो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो नॉर्मल डिलीवरी आपका काम है, चीज़ें ढूंढना, रिस्क फैक्टर ढूंढना जैसे आपको बताया वो आपका काम है। लेकिन जब हम सब मिलके काम करेंगे तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी केयर सेंटर्स आपने देखने हैं, आप उनको अच्छा सा संभालो
कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगी, डॉक्टर का काम कम हो जाएगा। तो वी आर ऑल ऑन द सेम फुटिंग और हम सबको हमारा एम एक है, एक मिनट, हम सबका एम एक है कि हमने मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी को और मॉर्बिडिटी को कम से कम करना है। तो जब तक हम हैंड्स ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और इसकी बेस्ट मिसाल जो है कोईगोट हॉस्पिटल में है और अभी मैं इंडस हॉस्पिटल में भी देख रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे अगले 2 सवाल आपके एक ही जवाब में मर्ज हो चुके हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे यही करना था कि हमारी नर्सेज, मिडवाइफ्स और डॉक्टर्स की कोलैबोरेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसका आपने नहीं, उसका मैं आपको एक और जवाब देना चाहूँगी। इसकी कोलैबोरेशन हमारी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने एक मॉडल बनाया है। वो मॉडल ये है कि हमने कुछ सेंटर्स के साथ व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बनाए हैं। उसका ऐसे होता है कि वो जो प्राइमरी सेंटर है वो हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर अटैच्ड है। उनको जहाँ पे वो मिडवाइफ जो हैं वो डिलीवरीज भी कर रही हैं, वो पेशेंट देख रही हैं, क्लिनिक्स कर रही हैं, वी आर इन कांटेक्ट विद देम। मैम थोड़ा सा इसे क्लियर करेंगे, क्योंकि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है, आप इसको थोड़ा सा क्लियर कर सकती हैं? जी मैं बताती हूँ। ऐसा है कि डिफरेंट सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो कि फार फ्लंग एरियाज़ में हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं। अच्छा। और वहाँ पे हेल्थ विजिटर्स और कम्युनिटी नर्सेज जो हैं वो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही हैं। दे आर रनिंग द डिपार्टमेंट्स जिसमें पेशेंट डिलीवर भी हो रहे हैं, उनको मेडिकेशन भी दी जा रही है और उनको इनिशियल जो है वो फर्स्ट एड भी दी जा रही है। हम उनके साथ राब्ते में हैं थ्रू व्हाट्सएप। ओके ओके। अब ऐसा है कि पेशेंट आता है, वो हमें हिस्ट्री बताती हैं, पेशेंट की तस्वीर दिखाती हैं कि ये ऐसे हो रहा है। हमारे डॉक्टर्स उनको गाइड करते हैं कि हाउ टू डील विद दिस कॉम्प्लिकेशन एंड हाउ टू डील विद दिस पेशेंट। और ये मॉडल बहुत ज़बरदस्त है। इससे क्या है कि दूर बैठे हुए डॉक्टर को भी ये तसल्ली है कि वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स हेल्थ सिस्टम। और वो हमारी बच्ची जो एक दूर जगह पे बैठी हुई सर्विसेज दे रही है, उसे हौसला है कि उसकी कोई बात सुनने वाला है, कोई उसे गाइड करने वाला है। तो ये कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है एंड इट शुड बी ऑन ऑल लेवल्स। आपके कहने का मतलब है एक मोबाइल सर्विसेज हैं जिसमें आपके पास मिडवाइफ या आप नर्स कनेक्ट करें, आप एरियाज डिफाइन करें, डिफरेंट एरियाज, उनको कनेक्ट करें विद सीनियर कंसल्टेंट्स के साथ, स्पेशलिस्ट के साथ, और वो अपना एक डेडिकेटेड टाइम दें। अच्छा। तक वो 1 घंटे का दें, वो 2 घंटे का दें, हफ्ते में 1 दफ़ा दें, 2 दफ़ा दें। इससे ये होगा कि एक कंटिन्यूस एजुकेशन भी होती रहेगी और एक जो हमारा साथ है वो मजबूत होता जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अब मुझे बिल्कुल क्लियर हो चुका है। एक्चुअली मैम दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर इसको बहुत अच्छे से सुना जाए और क्लियर कॉन्वर्जेशन हो, इसलिए मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी। नेक्स्ट माय क्लोजिंग क्वेश्चन से पहले मैं आप सबसे क्वेश्चन करना चाहूँगी। अगर किसी को भी हमारे पैनलिस्ट से क्वेश्चन करना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और बाय नेम आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो। अच्छा, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं एक और बात कहना चाहूँगी। जैसे अभी कोईगोट में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बहुत जगहों पे वहाँ पे मिडवाइफरी की भी ट्रेनिंग हो रही है, नर्सिंग की भी हो रही है और मेडिकल स्टूडेंट्स की भी हो रही है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इकट्ठे पढ़ाए जाना चाहिए, जिनमें क्या है बेसिक एनाटमी है, बेसिक फिजियोलॉजी है, इसी तरह से ऑब्स्टेट्रिक्स है, चाइल्ड बर्थ का वो, पेशेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, स्टरलाइजेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम हरासमेंट। बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि इकट्ठे पढ़ाए जा सकते हैं फर्स्ट ईयर रेजिडेंट्स को और बाकियों को एक दूसरे के साथ मिला के। उससे क्या होगा कि हमारी बॉन्डिंग आपस में मजबूत होगी और हमारा जो है एक डिफरेंस लोग ले आते हैं मिडवाइफ में, नर्स में, डॉक्टर में, वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे जो है बहुत सारी क्लासेस इकट्ठी होना चाहिए। और एक और चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि जो फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट हैं, पार्ट 2 के, हाउस जॉब के डॉक्टर और मिडवाइफरी के, इनकी जो है फर्स्ट ईयर की ट्रेनिंग एक साथ होनी चाहिए। वहाँ पे सारे लोग जो हैं इक्वल फुटिंग पे हों और दे शुड लर्न हाउ टू डिलीवर ए पेशेंट वजाइनली। उससे क्या होगा कि हमारा सिजेरियन सेक्शन का रेट कम होगा, म्यूचुअल इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और डिफरेंसेस भी हमारे डिफरेंस कम होना चाहिए। देयर शुडंट बी एनी डिफरेंस बिटवीन अस। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। प्लीज क्लैपिंग फॉर हर। आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है हमारे पैनलिस्ट से? प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। कोई नहीं, ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन मेरा एक लास्ट है, आप में से कोई भी उसका जवाब दे सकता है।
मुझे नज़र नहीं आया, सॉरी। प्लीज़ आप खड़ी हो सकती हैं, थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Fawzia. I am come from UM. आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, आप प्लीज़ माइक थोड़ा करीब कर लें। Assalamu alaikum. Is clear? जी जी, अब My name is Fawzia from NICH and मेरा क्वेश्चन सिर्फ आप तीनों पैनलिस्ट से भी है, मगर इससे पहले मैं आप सब लोगों को कांग्रेचुलेट करती हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने अरेंज किया और इतनी नॉलेज हमें दी और डिस्कशन में भी हमें इतनी सारी नॉलेज आप लोगों ने प्रोवाइड की। मगर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जिस तरह मैडम महमूदा ने भी बात की, मैडम फ़खरुन्निसा ने, मैडम मुनीरा ने, तो कोलैबोरेशन तो बहुत अच्छी चीज़ है हम सब की, मगर ये कि ना इसको हमें ना हाई लेवल पे ज़रूर लेकर जाना चाहिए। मींस के हमारे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि हमारे पास दोनों जगहों पे ट्रेनिंग्स हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर भी ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स भी करवा रहे हैं, तो वहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और सेकंड ये कि स्पेशली मैडम फ़खरुन्निसा कि आप है ना हमारे टीचर्स जितने भी हैं, मिडवाइफरी के टीचर्स और हमारे GBS के टीचर्स, इन लोगों को रिफ़्रेश कोर्सेज ज़रूर करवाएं, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में रिफ़्रेश कोर्सेज नहीं हो रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फौजिया। मैंने अभी बताया है कि हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है, हमने इनिशिएटिव लिया है, हमने पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स की अभी फैकल्टी को मेरे ख्याल में 3rd या 4th बैच जो हमारा ट्रेंड हुआ है, हम MBA कॉन्ट्रासेप्टिव जो ट्रेनिंग थी उसके लिए हमने 8 नॉमिनेज पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के करवाए हैं। इमॉक की ट्रेनिंग अभी मैप के प्लेटफॉर्म से UNFPA और इनके साथ तकरीबन 15 to 18 मेंबर्स हमारे वो ट्रेंड हुए हैं। और इससे पहले जो कैरिकुलम क्योंकि रिफॉर्म हो रही है उसके लिए भी हमारे पब्लिक सेक्टर से गए हैं और इंशाल्लाह वो हम प्राइवेट सेक्टर्स के भी आगे टिकट ऑन चीज़ों को होंगे। तो ये पैरेलली चल रही हैं। हाँ, एक्सपेंड करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चीज़ें पैरेलली साथ साथ चल रही हैं ट्रेनिंग, क्योंकि जब तक टीचर्स ट्रेन नहीं होंगे वो अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से प्रॉपरली ट्रेनिंग दे सकेंगे। अपडेटेड नॉलेज होगी तो स्टूडेंट्स भी उसको नॉलेज से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। थैंक यू। थैंक यू फौजिया, थैंक यू मैम फ़खरुन्निसा। इसके बाद मेरा एक फाइनल क्वेश्चन है, आप में से जो चाहे वो उसका आंसर कर सकता है। आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान की हेल्थ केयर सिस्टम में मिडवाइफ्स को आप किस मुकाम पर देखते हैं? आप अगर चाहें तो आप तीनों अपने अपने स्टेटमेंट्स इन 1 सेंटेंस दे सकते हैं। नहीं, मेरा 1 सेंटेंस ये है कि मिडवाइफ जो आने वाले 5 सालों के अंदर, मैं तो 5 साल मैं समझती हूँ बहुत दूर है, आने वाले 2-3 सालों के अंदर भी मैं ये देख रही हूँ कि जितनी नीड हर स्टेज पे एक नर्स की है ना, इससे डबल स्टेज, क्योंकि इस 26 का जो ICM का स्लोगन है उन्होंने भी कहा है कि मोर 1 मिलियन मिडवाइफ्स, उनका स्लोगन है 2026 का ICM का। तो मिडवाइफ्स को मैं बिल्कुल इक्वली देख रही हूँ नर्सिस के। वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अगर हम रिसेंटली WHO की या ग्लोबली डेटा देखें तो WHO भी यही कहता है कि जहाँ मिडवाइफ हैं वहाँ मैटरनल मॉर्टिलिटी बहुत रिड्यूस हुई है, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड। और दूसरी जो उन्होंने डिक्लेरेशन दिया है वो ये दिया है कि जितनी भी जहाँ भी मिडवाइफरी केयर दिया जाता है, जहाँ भी फील्ड में, जहाँ भी चाहे प्राइवेट क्लिनिक है चाहे कम्युनिटी बेस्ड क्लिनिक है, जहाँ पर भी हॉस्पिटल में अगर मिडवाइफ को आगे दिया जा रहा है, अगर वो लोग केयर देती हैं तो सिजेरियन रेट भी बहुत कम हो रहा है ड्यू टू मिडवाइफ्स। तो इंशाल्लाह कुछ 5 सालों में मिडवाइफ जो मैंने बताया ना कि दे विल बी हियर इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, ये प्रोविंस ऑफ सिंध को क्रेडिट जाता है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा MMR का रेशो जो कम है वो प्रोविंस ऑफ सिंध में है, और ड्यू टू मिडवाइफ CMWs के लिए। प्लीज़ अपने लिए आप तालियां ज़रूर बजाया करो। मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी तमाम पॉलिसी मेकर से कि वो हर टर्शरी केयर हॉस्पिटल में एक जो है लो रिस्क लेबर रूम को अलग किया जाए,
completely वो अलग हो, और that should be run by the midwives. उसके अंदर मिडवाइफ्स उसको रन करें, वही वहाँ पे टीच करें, और उसी जो है लोअर रिस्क लेबर रूम के अंदर, बल्कि वो पूरा एक सेटअप होना चाहिए, सिर्फ ओपी उसमें लेबर रूम नहीं, वो ओपीडी भी हो, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस भी हों, अल्ट्रासाउंड्स भी हों, उसी मॉडल पे जिस मॉडल पे कोई गोट रन करता था। और उसमें क्या होगा कि उसी में वो हाउस जॉब वाले डॉक्टर्स को भी रोटेट करें, और पार्ट 1 के FCPS पार्ट 1 वाले डॉक्टर्स को भी रोटेट करें। उससे ये होगा कि हमारा जो एक तो मिडवाइफ का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा, आपस में दूरी दूर होगी, और सेकेंडली ये है कि डॉक्टर्स को भी सिजेरियन सेक्शन के शॉक से निकल के वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि हम जल्दी से सिजेरियन सीख लेते हैं। नॉर्मल डिलीवरी करना एक आर्ट है, और जो भी डॉक्टर ऑब्स्टेट्रिशियन है, अगर वो एक अच्छा मिडवाइफ नहीं है तो फिर वो एक अच्छा डॉक्टर भी नहीं है। तो बेसिकली हम सब पहले मिडवाइफ हैं, तो फिर हमारे अंदर नर्सिंग आती है, और फिर हम डॉक्टर बनते हैं। दीज आर ऑल 3 स्टेप्स। थैंक यू सो मच। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी इसी प्लेटफॉर्म से, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा एंशियस इस पे काम कर रहा है। जैसे कोई गोट के अंदर मिडवाइफरी लेड केयर मॉडल एप्लीकेबल है, ऐसे ही डॉ के अंदर भी मौजूद है। तो ये प्रैक्टिस जो है तमाम टर्जी केयर हॉस्पिटल्स के अंदर भी इंशाल्लाह सुन इसके लिए पाइपलाइन में है कि ये मिडवाइफरी लेड केयर मॉडल जो है वो हम सब इंस्टीट्यूट जो पब्लिक टर्जी केयर है ख़ास तौर पे वहाँ पे इनिशिएटिव लिया जाए इसका। अब गवर्नमेंट इसको जब तक कंपलसरी नहीं करेगी कुछ भी नहीं होगा। हाँ, नहीं, गवर्नमेंट आप 5 साल के बाद मिडवाइफ्स को कहाँ देखते हैं? मैं यहीं देखती हूँ। जब तक मिडवाइफ खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं होंगी, जब तक अपने हक के लिए आप बात नहीं करोगे, जब तक आप अपने सेंटर्स अलग नहीं करोगे लो रिस्क वाले, तब तक ये है कि मिडवाइफ पीछे रहती जाएगी। तो ये ना करें, सेंटर्स अलग करवाएं, अपने आप को एम्पावर करें, और अपने साथ डॉक्टर्स को साथ शामिल करें नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much. And now I would like to extend my heartfelt thanks to all the participants for sharing your valuable insights and experiences on this important topic. Your perspectives have truly enriched our program and have helped us gain a deeper understanding of maternal health. We are deeply grateful for your time and effort, and we hope to continue learning from your expertise. Thank you, and big round of applause for them.